Okay, good morning, students. Before continuing our chapter, I want to tell you something that CBSE board had deducted some chapters due to the COVID-19 for this session. So please write down the chapters which we do not have in the syllabus for this session. For part 1, part A, chapter number 2, that is the origin and evolution of the earth. Origin and evolution of the earth. Second chapter which was deducted, chapter number 7, landforms. Please mark or write landforms and their evolution. The third one is chapter number 10, atmospherics, circulation and weather systems. Next is chapter number 12, world climate and climatic region. Next is chapter number 13, water in oceans. ये पार्ट ए के चैप्टर्स है जो डिडक्ट हो गए, जो हम कवर नहीं करेंगे. पार्ट बी के भी कुछ चैप्टर्स है दैट आर आल्सो डिडक्टेड. पार्ट 2, चैप्टर नंबर 2, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी. Next is chapter number 4, climate. Chapter number 7, natural hazards. And disasters. Some chapters of the practical section also deducted. Write down the practical. Chapter number 4, map projection. And chapter number 5, topographical maps. So this is the latest information from the CBSE board regarding syllabus deducting. Now come to the our next theory, which was we discussing in the last lecture. That was the continental drift theory. Continental drift theory, which was given by the Alfred Wegener. I told you that the Wegener suggested a way of new thinking, that the oceans and continents were not at the same place as it is in the present. Present में जो continents and oceans की हमें situation दिखती है वो उसमें नहीं थी. अब वैगनर ने काफी सारे एविडेंसेस दिए, प्लेजर डिपॉजिट्स के, रॉक एज, सिक्स ऑफ एट, different evidence he provided to prove his theory. So the scientists got a new way of thinking how the continents and oceans drift or move. How they moved apart from each other. So after the Second World War, some post-draft theories are also there. So we will study about the post-draft studies, which comes to the existence in the post-war period.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड, काफी सारे साइंटिस्ट जो है फिर उन्होंने इस पर और रिसर्च किया और इसके लिए न्यू वेव्स दिए। अब जैसे कि हमने बताया कि फ्लोरा और फौना की जो है डिफरेंट वैरायटीज होती है क्लाइमेटिक वाइज, बट वैगनर सजेस्टेड दैट वी हैव फाउंड द सेम fossils of flora and fauna either side of the Atlantic Ocean and the same age of rock either side of the Atlantic Ocean. It means they were a part of a single landmass at some time. तो यहाँ पर जो है इसको और जो है आगे इसको स्कॉलर्स ने इससे और डिफाइन किया और इसके थ्रू है वो इसको उन्होंने डायनामिक कंसेप्ट। अब वैगनर क्या मानता था कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं दैट आर स्टैटिक, वो स्टैटिक थे, मीन्स उनमें उनके अंदर कोई हलचल नहीं थी, तो सिर्फ वो जो है ड्रिफ्ट कर गए। लेकिन यहाँ पर जो है वो हम क्या माना गया, जो फर्दर साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि जो हमारी अर्थ है दैट इज नॉट स्टैटिक, दैट इज डायनामिक। There are certain changes inside the earth which led to the drifting of the continents. कि यहाँ पर अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, ऐसी डायनामिक पोजीशंस हैं जिसके कारण कॉन्टिनेंट्स मूव कर गए। और ऐसे ही जो दो डायनामिक कंसेप्ट है वो हमारे सामने आए। एक तो हमारा आया इसके साथ कॉन्टिनेंटल करंट, सॉरी कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट थ्योरी। कन्वेंशनल करंट थ्योरी जो है ये हमारा क्या है, डायनेमिक कंसेप्ट है और ये दो थ्योरीज को जो है जनरेट करता है। एक तो है हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड द सेकंड वन इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दोनों ही थ्योरीज क्या सजेस्ट करती हैं कि हमारी अर्थ जो है स्टैटिक नहीं है, दैट इज डायनामिक एंड देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। नाउ दे recognize that there is a very much differences in the ocean floors and they have। अब आप क्या सोचते हो कि ओशन फ्लोर कैसा होगा? जब हम एज्यूम करते हैं ऐसी चीज तो हमारे माइंड में आता है कि सिंपली देखो हर चीज का एक बेस होता है। पहले आप इस चीज को समझो कि बेस क्या है, ओशन फ्लोर का भी कहीं ना कहीं बेस है। अब यहाँ पर हम एक चीज लेके चलते हैं, सपोज ये कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है, जैसे कोई बिल्डिंग होती है, बिल्डिंग का पहले कोई ना कोई तो बेस होता है ना जिसके ऊपर वो बिल्डिंग खड़ी होती है। इसी तरह से ये कॉन्टिनेंट है और इनका ये बेस है और ये हमारा ओशन है। अब ओशन का भी तो कहीं ना कहीं बेस होगा जिस पर वो पानी आ रहा है ना। तो जैसे कि आपकी एक टब होती है, ठीक है, दैट टब इज फुल ऑफ वाटर बट इट हैज सम बेस बिलो द वाटर। तो वाटर के नीचे भी जो है वो क्या होता है, बेस होता है उसका, ओशन का। तो यहाँ पर उन्होंने क्या जो है देखा, क्या चीजें जो हैं वो रिकमेंड की कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स पर हम डिफरेंट फीचर्स देखते हैं। डिफरेंट फीचर्स लाइक फिजिकल फीचर्स आपने पढ़े कि कौन कौन से फिजिकल फीचर्स हम कॉन्टिनेंट्स पर देखते हैं, दैट इज माउंटेन्स, देन प्लेटू, ठीक है, फिर उसके बाद प्लेन एरिया, फिर हमें डिफरेंट ब्रांचेस भी मिलती हैं यानी खाई। यहाँ पर हमें माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन एरिया और ट्रेंचेस, ये सारे फिजिकल फीचर्स जो हैं वो हमें ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ we can see the all the physical features over the surface of the earth, but you may be wonder to know that these physical features also exist in the ocean floor. At the ocean floor we have all these features. ओशन फ्लोर पर भी सपोज मैंने आपको कहा कि ये ओशन वेव का जो है बेस है, तो ये जो है ओशन का बेस है, इस बेस पर भी हमें माउंटेन्स मिलते हैं, प्लेटोज मिलते हैं, प्लेन एरिया मिलता है और इसमें डीप ट्रेंचेस भी मिलते हैं। सेम फीचर्स हमें ओशनिक फ्लोर पर भी मिलते हैं। अब जो साइंटिस्ट है उन्होंने इन फीचर्स के थ्रू अपनी एक डायनामिक थ्योरी जो है प्रेजेंट की, दैट इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अभी तक हम यहीं पर यही समझेंगे
कि जो पहले उन्होंने क्या किया कि ओशन फ्लोर की मैपिंग की। ओशन फ्लोर की जब मैपिंग की गई तब ये देखा गया कि वी हैव द सिमिलर फीचर्स एट द बेस ऑफ द ओशन फ्लोर्स लाइक ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर भी हमें जो है रॉक्स भी मिलेंगे, सेडिमेंट्स भी मिलेंगे, माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेटूज भी मिलेंगे और डीप ट्रेंचेस मींस खाई भी मिलेंगे। अब सबसे पहले आता है कि इसकी हम 3 टर्म्स देखेंगे कि हम जैसे कि उसमें सरफेस पर एलिवेटेड पार्ट है उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं, है ना। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो एलिवेटेड पार्ट है उसको हम माउंटेन्स बोलते हैं जिसका बर्फ होता है। बट यहाँ पर जो है ओशन फ्लोर्स पर हम उनको डिफरेंट नेमिंग करते हैं। प्लेन एरिया का डिफरेंट नेम है और माउंटेन्स का डिफरेंट नेम है। इसी तरीके से जो है खाई जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर, तो इसका भी यहाँ पर क्या है डिफरेंट नेम है। अब सबसे पहले एक शॉर्ट जो है वो हम इसमें देखेंगे कि ओशन फ्लोर पर किस तरीके के फीचर्स हमें मिलते हैं। इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे अपने ओशन यूनिट में। बट यू हैव सम नॉलेज अबाउट द फीचर्स which are present on the ocean floor. सबसे पहले आता है इसमें आपका कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स अभी मैंने आपको बताया कि हर एक चीज का बेस है। जो ओशन है वो बिल्कुल कॉन्टिनेंट से सेपरेट तो नहीं है। कॉन्टिनेंट जहां है वहीं पर ओशंस है। आपने अटलांटिक ओशन देखा कि यहाँ पर आपका जो है नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आपका जो है साउथ अमेरिका है, फिर ये आपका यूरोप है, फिर यहाँ पर आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, बीच में ये जो है अटलांटिक ओशन है। तो इट मीन्स यहाँ ये जो कॉन्टिनेंट्स है उसके साथ ही जो है ओशन कनेक्टेड है। तो कॉन्टिनेंट का कोई इतना कई बेस जो है वो किसके साथ जा रहा है, ओशंस के साथ। तो अब इस फीचर को आप ऐसे समझोगे कि जैसे कि ये कॉन्टिनेंट है और यहाँ पर हमारा ओशन है। अब कॉन्टिनेंट ये तो नहीं है कि यहाँ ये ओशन के पानी के ऊपर से शुरू होता है, दोनों का जो बेस है वो सेम है अर्थ में, ठीक है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो है कॉन्टिनेंट जो है वो यहाँ से नीचे की ओर जाना शुरू करता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर जहां पर वाटर लेवल, ये सी लेवल है हमारा, सी लेवल पर जब कॉन्टिनेंट की बाउंड्री टच करती है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सी लेवल पर जहां कॉन्टिनेंट की बाउंड्री टच करती है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद भी कॉन्टिनेंट की जो वॉल कह सकते हैं आप कि वो कहाँ जाती है, ओशन की पोर्शन में जाती है और धीरे धीरे ये जो स्लोप है वो जेंटल होती जाती है। तो ये स्लोप यानी नीचे जो ये ओशन की तरफ उतर रहा है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप। गॉट इट। नाउ व्हाट हैपन कि जो ये कॉन्टिनेंट की स्लोप है धीरे धीरे और जेंटल होती जाती है लेस देन 1 डिग्री। तो ये जो है हमारा जो स्लोप है वो और भी ज्यादा क्या होती चली जाती है, डीप होती चली जाती है। और यहाँ से ये एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम ये कह सकते हैं, अगर हम ओशन साइड से देखें कि यहाँ से कॉन्टिनेंट बनना शुरू हो गया, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज। 3 पार्ट मैंने आपको बताया। सी लेवल पर जहाँ कॉन्टिनेंट टच कर रहा है दैट इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। फिर इसकी स्लोप जो है वो थोड़ी जेंटल होना शुरू होती है दैट इज नोन एज कॉन्टिनेंटल स्लोप। एंड व्हेन द स्लोप इज लेस देन 1 डिग्री इट इज नोन एज द कॉन्टिनेंटल राइज, यानी सी फ्लोर के बेस से जो है कॉन्टिनेंट उठना शुरू करता है। और इन तीनों को कंबाइंडली, इस तीनों पोर्शन को हम कंबाइंडली क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, यानी कॉन्टिनेंट्स का एरिया आप एक सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो ये हमारा पूरा पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ से लेकर कॉन्टिनेंटल राइज तक का पार्ट जो है वो कंबाइंडली क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। क्लियर। नाउ अब यहाँ पर ही हम इसको और कनेक्ट करते हैं
कि इसके बाद हमारा सेकंड आता है बेसल प्लेन। अब बेसल प्लेन क्या है, जैसे कि आपके सरफेस पर क्या होती है, प्लेन एरिया है, जैसे हमारे यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र गंगेटिक जिसको हम प्लेन एरिया कहते हैं, तो यहाँ पर भी हमें सर क्या मिलता है, प्लेन एरिया मिलता है। प्लेन एरिया की फॉर्मेशन कैसे होती है कि आपको पता है कि जितनी भी रिवर्स हैं दैट ड्रेन्स इनटू द ओशंस, ठीक है, तो उनका फाइनल डेस्टिनेशन क्या होता है, ओशन। ओशन में ड्रेन करती है, और ओशंस में ड्रेन करती हैं तो उनके साथ अपने वो क्या लेकर आती है, सेडिमेंट्स लेकर आती है। सेडिमेंट्स जो है वो यहाँ पर वो डिपॉजिट करती हैं, और भी हम अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी करेंगे जिसके कारण यहाँ पर और भी सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट होते हैं। तो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पर प्लेन एरिया की फॉर्मेशन होती है, और इस प्लेन एरिया को हम जो है वो क्या कहते हैं, एबेसल प्लेन। बेसल प्लेन जो है हम इस एरिया को कहते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी हमें प्लेन एरिया की फॉर्मेशन जो है ओशन फ्लोर पर देखने को मिलती है। इसके बाद जैसे कि वोल्केनिक इरप्शंस, हमने वोल्केनिक चैप्टर में अभी लास्ट चैप्टर में देखा कि वोल्केनिक इरप्शंस जो हैं दैट आल्सो ऑकर्ड इन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पर भी जो है अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। ड्यू टू द अर्थक्वेक्स हमने देखा था कि रिफ्ट वैलीज की फॉर्मेशन होती है, कि कोई पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, नीचे धंस जाता है, जिससे रिफ्ट वैली बनती है। और इसी तरीके से जो है अर्थक्वेक्स ओशन फ्लोर पर आते हैं तो यहाँ पर क्या बनते हैं, ट्रेंचेस बनते हैं। तो ओशन फ्लोर पर जो हमें डीप ट्रेंचेस दिखते हैं, समटाइम्स these trenches are so deep, समटाइम्स मीन्स कि यहाँ पर आपके पास एक इतनी जो है डेप्थ में ट्रेंच है कि आप अगर पूरे जो है हिमालयन माउंटेन्स को उसमें निकाल डाल दो तब भी हिमालयन माउंटेन का पार्ट जो है उससे ऊंचा रहेगा। तो इतनी डीप ट्रेंचेस जो है वो हमें ओशन फ्लोर्स पर मिलती हैं। नेक्स्ट इज मिड ओशनिक रिज। अब इसके बाद जो है कॉन्टिनेंट आ गया, फिर कॉन्टिनेंटल राइज आ गया, और अब बेसल प्लेन, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस के बाद का जो पोर्शन है दैट इज रिज। रिज इज अ लाइक सी माउंटेन्स, इनको हम क्या कहते हैं, रिजेस, जिनको नॉर्मली हम मिड ओशनिक रिज के नाम से कहते हैं, जिसमें हमारी जो मिड अटलांटिक रिज है दैट इज द लॉन्गेस्ट रिज इन अमंग द ऑल द ओशंस। तो यहाँ पर मिड ओशनिक रिज, जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा है कि जो ओशंस हैं, ओशंस के सेंटर में जो है वो हमें नॉर्थ टू साउथ हर ओशन के सेंटर में हमें माउंटेन्स की फॉर्मेशन मिलती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिजेस कहते हैं। तो इस माउंटेन की फॉर्मेशन से इस साइड भी हमें सेम फीचर मिलते हैं और इस साइड भी हमें सेम फीचर मिलते हैं, बिकॉज ओशंस की दोनों तरफ हमें कॉन्टिनेंट्स की फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर भी हमें जो है ये कॉन्टिनेंटल मार्जिन भी मिलेगा, बेसल प्लेन भी और ट्रेंचेस भी, और इस साइड भी हमें ये सब चीजें मिलती हैं। तो थर्ड हमारा जो है मैंने फोर आपको बताया, थर्ड है ट्रेंचेस and fourth is mid oceanic ridge. I think you must be familiar that from the physical features which are found on the ocean floor. So now you are able to understand how the sea floor spread. Before the sea floor spread, आपको ये भी पता होना चाहिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंचेस की फॉर्मेशन जो है दैट इज ड्यू टू द अर्थक्वेक्स व्हिच ऑकर्स एट द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पर जो भी हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं उसके कारण ट्रेंचेस या माउंटेन्स की फॉर्मेशन होती है। ब्लॉक माउंटेन्स ऊपर उठा हुआ भाग, और जो नीचे दस्तिया पार्ट अर्थक्वेक के कारण वो वैली की फॉर्मेशन हो जाती है। तो हमें दोनों तरीके की फॉर्मेशन ओशन फ्लोर पर मिलती है। अब इसमें हम अगर देखें तो हमारा ये सपोज ये एशिया, अगर आप ग्लोब के वाइज देखेंगे इस मैप को, तो यहाँ पर जो है वो ये हमारा एशिया का पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया है सपोज, ठीक है।
अब यहाँ पर हमारा जो है वो नॉर्थ अमेरिका है, फिर यहाँ पर जो है वो साउथ अमेरिका है, फिर यहाँ पर आपका यूरोप आ जाता है और यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जो अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक ओशन लाइज बिटवीन द टू अमेरिकास एंड यूरोप एंड अफ्रीका। तो ये सारा जो है वो हमारा अटलांटिक ओशन है। आप अपनी बुक्स में इसको रिकमेंड करेंगे इसमें कि आप बुक में आपके मैप दिया हुआ है फिगर 4.2, उसमें आप देखेंगे कि पूरा नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर जो है आपको डॉट्स मिलेंगे, ब्लैक डॉट्स, और यही डॉट्स जो है वो इंडियन ओशन, फिर जो हमारा साउथ अमेरिका है उसके पार्ट से, फिर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ सारे में ये हमें डॉट्स की फॉर्मेशन मिलती है। ये डॉट्स जो है वो किसको दिखा रहे हैं? अर्थक्वेक्स को। ये अर्थक्वेक्स जो है वो आते हैं हमारे मिड ओशन में। तो ये सारा मिड ओशनिक पार्ट है जहां पर अर्थक्वेक्स जो हैं वो हमें मिलते हैं। लेकिन ये अर्थक्वेक्स जो हैं वो शैलो अर्थक्वेक्स हैं, यानी बहुत ज्यादा डीप इनका फोकस नहीं है। लेकिन हमें कुछ जो है पार्ट यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट का ये मार्जिन है, ये जो पार्ट है दैट इज पैसिफिक ओशन। इनके बीच में कौन सा ओशन लाई करता है? पैसिफिक ओशन बिटवीन द एशिया एंड द टू अमेरिकास। तो ये जो पार्ट है अमेरिका का, यानी कॉन्टिनेंट मार्जिन जो है हमारा अमेरिका साइड और एशिया साइड, यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स जो है नजर आते हैं। यही वो बेल्ट है जहां पर वोल्केनिक इरप्शन भी सबसे ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इस पैसिफिक ओशन का जो ये पार्ट है इसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। रिंग ऑफ फायर मींस एवरी टाइम दे इरप्टेड, तो ऐसा लगता है कि हर टाइम जो है वहां से फायर आती जा रही है, तो इसलिए इस रीजन को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके की बेल्ट्स जो हैं वो हमें मिलती है। इसी तरीके से जो हमें अर्थक्वेक का मेजर अर्थक्वेक प्रोन एरियाज मिलते हैं जो बहुत ही डीप में है, वो हमें इनसाइड द कॉन्टिनेंट्स मिलते हैं। दो चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ अर्थक्वेक्स जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, बट दे हैव द शैलो फोकस। बट आपके जो हिमालयन माउंटेन्स हैं, यहाँ पर आपके हिमालयन माउंटेन्स हैं जो इनसाइड द कॉन्टिनेंट्स हैं, वहां पर हमें डीप अर्थक्वेक फोकस मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से जो अल्पाइन हिमालयन रीजन है वहां पर कॉन्टिनेंट्स के जो अंदर का पार्ट है वहां पर हमें सभी जगह जो है यूरोप का ये वाला पार्ट है जहां पर माउंटेन्स है, ब्लैक फॉरेस्ट है, इन सब में हमें जो है डीप फोकस मिलता है अर्थक्वेक का। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमारा ओशन में शैलो है और इनसाइड द कॉन्टिनेंट्स ये डीप है। अब हम इन सारे कॉन्सेप्ट को जब आप समझ चुके हैं तब हम आते हैं आप अपनी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी पर। कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी है क्या? सेकेंड थ्योरी इज सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। अभी इसके नाम से आपको पता लग रहा है सी फ्लोर, कि सी जो बेड है, सी बेड जो है वो स्प्रेड हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका विस्तार हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे मान लें हम कि ऐसा हो रहा है? इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आता है फेवर में, दैट इज कि जो हमारा सी फ्लोर है उस पर मैंने अभी आपको मैप के थ्रू भी बताया कि वहां पर कंटिन्यूअसली क्या होते रहते हैं? वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं। So volcanic eruptions took place in the mid-oceanic ridges. Volcanic eruptions took place in the mid-oceanic ridge. जब
जब वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उससे क्या होगा, लावा एमिट होगा, सो इट एमिटेड लावा। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये हमारा फैक्ट है कि सी फ्लोर पर वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं मिड ओशनिक रीच पर एंड लावा एमिटेड फ्रॉम दैट। सेकेंड इज कि यहाँ पर जब ओशन फ्लोर को की मैपिंग की गई तो ये देखा गया कि जैसे मैंने अभी आपको बताया ये हमारा मिड ओशनिक रीच है, ठीक है। मिड ओशनिक रीच के आइदर साइड्स, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड, दोनों साइड्स पर जो रॉक्स हैं वो रॉक्स जो है दे आर सिमिलर, सिमिलर है उनकी फॉर्मेशन, दे हैव सिमिलर फॉर्मेशन एंड similar formation regarding chemical composition and magnetic properties। इनकी जो है chemical composition ही सेम है और इनकी magnetic properties भी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था कि रॉक्स जो हैं, रॉक्स में अपने ही, क्योंकि वो किससे फॉर्म हो रही है, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स मींस नीचे से जो है लावा आ रहा है। अब लावा जो है मैंने आपको बताया कि अर्थ के इनसाइड में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के मिनरल्स हैं लाइक आयरन और फेरस और निकेल, तो यहाँ पर जो है वो बाहर आएंगे, बाहर आने के कारण वो रॉक्स में कन्वर्ट होंगे। सो रॉक्स हैव सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हमें इन दोनों ही साइड पर सेम केमिकल कंपोजिशन मिलती है और सेम इन रॉक्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। इट मींस यहाँ पर एक और चीज रॉक्स के बारे में जो है उन्होंने रिकॉग्नाइज की कि जो ओशन फ्लोर्स के रॉक्स हैं, द रॉक्स which are at the ocean floors, they are younger rather than continents rock। कॉन्टिनेंट पर हमें जो रॉक्स मिलती हैं उनके कंपैरेटिवली जो ओशन फ्लोर की रॉक्स हैं वो क्या है, यंगर हैं, यानी उनकी एज जो है वो क्या है, कम है। इनकी एज जो है वो हमें कितनी मिलती है, 200 मिलियन ईयर्स। मींस इनकी जो फॉर्मेशन है वो कब हुई, 200 मिलियन ईयर्स। while continental rocks are formed 3200 million years। तो इनकी एज जो है वो हमें कितनी मिलती है, 3200 मिलियन ईयर्स। यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं कि सी फ्लोर जो है वो फॉर्म हो रहा है, वो यंगर है रादर देन द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर ये दो बातें जो है दो चीजों से प्रूव हो जाती है। सबसे पहले कि जो रॉक्स की फॉर्मेशन है वो हमें एक जैसी मिलती है, दूसरा जो रॉक्स हैं दैट आर यंगर देन द कॉन्टिनेंटल रॉक्स। फोर्थ पॉइंट दैट इज द सेडिमेंट ऑफ द ओशन फ्लोर्स। यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं कि ओशनिक जो फ्लोर है वो कॉन्टिनेंटल फ्लोर के कंपैरेटिवली यंगर है। तो यहाँ पर हमारा फोर्थ पॉइंट आ जाता है सेडिमेंट्स। अब आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती है, डिपॉजिट करती जाती है। सॉइल की जो फॉर्मेशन है उसमें उसकी एज का बहुत बड़ा हाथ होता है कि जितना टाइम पीरियड हो जाएगा सेडिमेंट्स को, सॉइल जो है वो थिक होती चली जाएगी। किया था तो सेम सेडिमेंट्स की फॉर्मेशन हम यहाँ देखते हैं। सेडिमेंट्स जो हैं वो ओशन फ्लोर पर भी डिपॉजिट हो रहे हैं और कॉन्टिनेंट्स पर भी डिपॉजिट हो रहे हैं। अगर ये सेम एज के होते तो इनकी जो थिकनेस है वो भी हमें सेम मिलनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। ओशनिक फ्लोर पर जो हमें सेडिमेंट्स मिलते हैं वो क्या है, थिन है, दैट आर थिन। वो कॉन्टिनेंट्स के कंपैरेटिवली उनकी लेयर जो है वो बहुत ही कम है। तो इट मींस जो ओशन फ्लोर्स है दैट इज यंगर देन द कॉन्टिनेंट्स। या हम कह सकते हैं कि उसमें हमें और ज्यादा जो है नहीं, जो जैसे कि हमारा रिवर का हमारा होता है कि यहाँ पर पहले जो है एक भांगर और खादर आपने किया था कि खादर जो है वो
न्यू एलुवियल है कि हर बार रिन्यू हो रहा है, और भांगर जो पहले से बन चुका है। इन चीजों को हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो ओशनिक फ्लोर है वो खादर है, और जो कॉन्टिनेंट का जो सेडिमेंट्स है वो क्या है, भांगर है, जो पहले बन चुके हैं और ओशनिक फ्लोर पर अभी भी बन रहे हैं। सो नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमें डीप ट्रेंचेस मिलते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि जो ओशनिक फ्लोर पर भी हमें डीप ट्रेंचेस मिलते हैं और कॉन्टिनेंट्स पर भी हमें डीप ट्रेंचेस मिलते हैं। ओशनिक फ्लोर पर जो डीप ट्रेंचेस हैं दैट इज शैलो, मींस इनका जो अर्थक्वेक जो फोर्स है वो कम है, मींस अर्थक्वेक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। तो इट मीन्स जहां पर अर्थक्वेक का फोकस होगा, यानी ओशनिक फ्लोर पर फोकस जो है वो क्या होगा, नियर होगा एज कंपेयर टू द कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पर हमें जो है डीप ट्रेंचेस मिलते हैं विच ऑकर ड्यू टू द अर्थक्वेक वेव्स, एंड द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज शैलो देन द कॉन्टिनेंट्स। So these reasons now conclude the sea floor spreading theory. अब आपने ये सारी चीजें जो है देख ली, ये फैक्ट है जो हमें ओशन फ्लोर पर नजर आते हैं। ओशन फ्लोर के हमें जो रॉक स्ट्रक्चर है और इसमें हमें सिमिलैरिटीज और ये सब नजर आती है। अब ये ऐसा है क्यों? अब हम आते हैं सी फ्लोर पर। सी फ्लोर हम देखते हैं, ये सी फ्लोर है हमारा सारा, और इसमें जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं इसके बीच में क्या है, एक वीक पॉइंट है, जिसमें से ये हम इसको क्या कहते हैं, रिजिस। रिजिस क्यों कहते हैं? रिजिस का नाम हमने बाद में दिया जब ये माउंटेन की फॉर्म में आ गए। अब यहाँ पर माउंटेन की फॉर्म की फॉर्मेशन कैसे हुई कि यहाँ से जो है इस पार्ट से ओशनिक बेड का ये जो पार्ट है वो वीकर सेक्शन है, जहां से हमेशा क्या होता रहता है, वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता है। वोल्केनिक इरप्शंस होने के कारण, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शंस के कारण यहाँ पर क्या आएगा, लावा आएगा। लावा जो है ऊपर आएगा, मैग्मा जो ऊपर आएगा और वो लावा की फॉर्मेशन करेगा। अब लावा जब ऊपर आएगा तो वो स्प्रेड होगा, यानी वो इससे नीचे की ओर जाना शुरू होगा। नीचे की ओर जाना शुरू होगा तो जिससे कि ये जो लावा के सेडिमेंट्स है ना, जो लावा है वो धीरे धीरे कूल डाउन होता चला जाएगा, और यहाँ से इसकी फॉर्मेशन होगी, प्लेन की फॉर्मेशन होगी। सेम फॉर्मेशन जो है वो इधर होती है। जब हम बीच में से कोई चीज निकल रही है एक स्पेस से, तो जब आप उसको वो फैलेगी तो वो भी इक्वली फैलेगी। तो इसलिए मिड में से जो लावा एमिट हो रहा है वो भी दोनों साइड पर इक्वली स्प्रेड हो रहा है। अब लावा स्प्रेड होने से जब हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे ये लावा जो है वो कूल डाउन होगा। कूल डाउन होने पर कोई भी चीज, आपको ये साइंस में आपने पढ़ा कि कोई भी चीज जब कूल डाउन होती है तो वो ज्यादा स्पेस लेती है। जैसे हम पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होता है, आइस। बट हाँ जी सर। मैम 5 मिनट बचे हैं अभी। ओके, तो ये क्या होगा कि ज्यादा स्पेस लेगा। स्पेस लेने से ये यहाँ पर स्पेस तो उतना ही है इस सीरीज का। अब ये दोनों साइड स्पेस लेने के लिए यहाँ पर जब लावा जमने लगेगा, यहाँ पर कूल डाउन हो रहा है, ठीक है, लावा मिट हुआ, कूल डाउन हो रहा है। कूल डाउन होने से ये स्पेस लेगा। स्पेस लेने के कारण, स्पेस लेने के लिए ये दोनों साइडों को पुश करेगा, जिसको आप डाइवर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। इससे किसकी फॉर्मेशन हुई, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज की। When the lava cooled inside the mid-oceanic ridge, they got space and the divergent boundaries generate. Divergent boundaries यानी दोनों साइड की रॉक्स को जो है बेड को ये पुश कर रहा है, फैला रहा है। इससे हमें क्या दिखाई देता है कि हमारा जो ओशन फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है। ओशन फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, यानी दोनों चीज, यहाँ पर माउंटेन बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े माउंटेन, वो उनकी विड्थ बढ़ती जा रही है, और ये जो बेड है उसको वो पुश करता जा रहा है। तो हमारा ओशन जो है वो स्प्रेड हो रहा है।
लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि जैसे हम रॉक साइकिल में भी पढ़ेंगे कि जो रॉक्स बनती हैं वो डिस्ट्रॉय भी होती है, नीचे इनसाइड द अर्थ भी जाती है। सेम यहाँ पर भी क्या है, कन्वेंशनल करंट्स की फॉर्मेशन होती है। कन्वेंशनल करंट का मतलब क्या है कि हमारा अर्थ का तो स्पेस एक जैसा ही है ना, उसको तो हम बढ़ा घटा नहीं सकते ना, ये सी घटा सकता, तो ये पुश तो कर रहा है, कहाँ जाएगी ये चीज, स्क्वीज नहीं होगी। इसका एक तो हो सकता है कि यहाँ पर इसको हम पुश कर रहे हैं तो ये ऊपर उठना शुरू हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो जितनी भी ये रॉक्स होती हैं, रॉक्स क्या करती है, ये फिर से ओशन के इनसाइड द ओशन नीचे चली जाती हैं, यानी कि इंटीरियर होगा अर्थ में, ये दोबारा से रॉक्स चली जाती हैं, फिर ये यहाँ जाकर मेल्ट हो जाती है, मेल्ट होकर फिर से मॉल्टन फॉर्म में, लावा की फॉर्म में ऊपर आती हैं दोनों साइड से, और यहाँ से फिर से यही सारी चीज जो है वो दोबारा चलती है। इट मीन्स ये पूरा साइकिल चलता रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट्स। एक चीज का बनना, फिर बिगड़ना, फिर बनना, एक साइकिल का घूमना हमारा क्या कहलाता है, कन्वेंशनल करंट्स। तो इस तरीके से हमारा सी फ्लो जो है वो स्प्रेड होता जा रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स जब एक चीज को पुश करेगा तो इसके साइड में क्या है, कॉन्टिनेंट, तो कॉन्टिनेंट्स भी क्या होंगे, मूव होंगे। तो हमारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो क्या हो गए, मूव हुए ड्यू टू द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। दैट इज द सेकेंड थ्योरी। Now, if you have any confusion, any doubt, any query, you can ask. Raise your hand, please. Students, raise your hands. चलिए दिनेश सर, it's okay.